with a new topic, that is the human health and disease. Now, this lesson is very, very important because we know that today we are undergoing this problem of disease condition, that is COVID-19 virus, and therefore it's a requirement for the day to learn this topic about the health and about the disease. So let us begin with our topic now. What is health basically? So when we define health, see, all these definitions are very important for the board exams. Board exam में textual definition बहुत जरूरी है. So when we talk about health, so it is nothing but a state of complete physical, mental and the social well-being. Okay, you should be physically fit. Similarly, you should be mentally fit, and when you are physically and mentally fit, you will be surely fit socially. So when a people are healthy, they are more efficient for their work. So healthy होना जरूरी है ना. आज क्यों लॉकडाउन है? Because अगर हम healthy नहीं रहेंगे, अगर हमें कोरोना वगैरह हो गया, तो we will not be efficient at our work. For maintaining a proper health, there should be a balanced diet. Now in lockdown, in every news channel, they are saying that there should be a proper diet, hygienic diet, yes, balanced diet. तो ये balanced diet के ऊपर बहुत ज़्यादा emphasize किया जा रहा है. So health का basic key factor क्या है? Balanced diet, personal hygiene, yes, no doubt, regular exercise, and which helps in maintaining our good health. For exercise, if you can't go out, yes, you can surely opt for yoga. Then, why this lesson has been introduced in your 12th standard syllabus? To make you aware about different types of diseases, to make you about what is the meaning of vaccination or immunization for any of the diseases, how there should be disposal of waste, and how these vectors can be controlled. So ये particular lesson में आप बहुत सारी बीमारियां पढ़ोगे जो एकदम डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमन बीमारियां हैं. तो वो कॉमन बीमारियों से रिलेटेड अगर कुछ वेस्ट से उसका संबंध है, तो वो वेस्ट को आपको कहाँ पे डिस्पोज करना है. अगर वो डिजीज का कोई वेक्टर से संबंध है, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है. अगर उस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो वैक्सीनेशन कौन से टाइप का है या वैक्सीनेशन कैसे बनता है, ये सारी चीजें आपको बोर्ड जो है इस लेसन से अवेयर करके देगा. ठीक है. हाउ वी कैन मेंटेन अ हाइजीनिक फूड, वाटर, कौन कौन से फूड बॉर्न डिजीजेस होते हैं, कौन कौन से वाटर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, कौन कौन से एयर बॉर्न डिजीजेस होते हैं, ये सारे चीजें आप इस लेसन में पढ़ोगे. सो अगर हम हेल्थ के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो इट कैन बी जेनेटिक डिसऑर्डर्स, inheritable defects of parents to the offsprings. Yes, it can be infectious also, जैसे अभी कोरोना वायरस जो है ये infectious है. Lifestyle also affects our health, that is having junk food or contaminated water. If we are always resting, we are not doing any sort of exercise, our habits, etc. So for all these things, we have to be, the word which comes into the thing is the about the diseases. So disease क्या है? It is a condition of dearranged functioning of one or more organ system of the body. So disease हम कब बोलते हैं? जब अपना कोई एक organ या अपना organ system अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है. Yes, तो disease भी again अलग अलग type के diseases होते हैं. Yes, there can be infectious disease. Just a minute, beta, just a minute. Yes, now you can hear na beta me. आपको आवाज आ रही है? Please message me. Hello, can you hear me all? Yes, miss. अच्छा, आपको स्क्रीन भी दिखाई दे रहा है ना सबको? स्क्रीन दिख रहा है सबको? प्लीज रिप्लाई. स्क्रीन दिख रहा है? ओके.
ओके चलो ठीक है. So disease is easily transmitted from one person to another person. So if it is transmitted by one person to another, so it is called as an infectious disease. अगर वो नहीं ट्रांसफर हो रहा है तो उसको हम नॉन इन्फेक्शियस के कैटेगरी में डालेंगे, जैसे कि कैंसर एंड ऑल हो गया. ये लेसन में आपको बार बार ये टर्म आएगा, दैट इज पैथोजन. तो पैथोजन का मतलब क्या है, प्लीज अब लिख लो. अब आपको ये लेसन में जो जो टर्म्स आने वाले हैं. एक मिनट, योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड यहाँ पे दिखा रहा है. तो अगेन मेरे स्क्रीन पे ऐसा दिखा रहा है बेटा, योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज. सो आपको नहीं दिख रहा है क्या? माधुरी मैम स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? माधुरी मैडम आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ मैडम बोलिए. मेरे स्क्रीन पे दिखा रहा है. हाँ मुझे दिख रहा था मैडम आपका स्क्रीन. अच्छा अभी आया. हाँ चलिए ठीक है. ओके हाँ, तो बच्चे लोग प्लीज ये टर्म लिख लो, दैट इज पैथोजन. पैथोजन का मतलब क्या होता है? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो आप 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ोगे माइक्रोब्स के बारे में, कि कुछ अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारियां भी होती हैं. तो हम पैथोजन किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिज्म से हमें बीमारी होती है उसे ही हम स्पेसिफिकली पैथोजन्स बोलते हैं. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब ये पैथोजन से लड़ने के लिए हमारे बॉडी में एक सा सिस्टम है एंड इट वर्क्स वेरी प्रॉपरली एंड नाइसली, और वो सिस्टम का नाम है इम्यूनिटी सिस्टम. ठीक है? एंड द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. यस, अपने बॉडी में ये पैथोजन से लड़ने के लिए एक सिस्टम है जिसका नाम है इम्यूनिटी सिस्टम, और द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी. ठीक है? तो अब हम पढ़ेंगे इस लेसन में इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में. सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक दैट इज इम्यूनिटी एंड द इम्यूनिटी सिस्टम. तो आप ये बाजू में डायग्राम देख सकते हो. ये डायग्राम आपको किस चीज का दिख रहा है? मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया था लास्ट टाइम. आप देख सकते हो पूरे बॉडी में ये लिम्फेटिक सिस्टम स्प्रेड दिख रहा है आपको. उसके साथ साथ आपको स्मॉल स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर्स भी दिख रहे हैं विच आर कॉल्ड एज अ लिम्फ नोड्स. जब मैंने आपको लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में बताया था तब मैंने आपको बताया था कि लिम्फ नोड्स ज्यादा हमारे नेक रीजन में होते हैं, हमारे आर्मपिट रीजन में होते हैं और ग्रॉइन रीजन में होते हैं. स्प्लीन भी एक टाइप का लिम्फ नोड ही है. मैंने पेयर्स पैच के बारे में भी आपको बताया था, मैंने आपको टॉन्सिल के बारे में भी बताया था. ये सारे लिम्फ नोड्स जो हैं दे ऑल आर हेल्पिंग इन अवर इम्यूनिटी सिस्टम. मतलब I can say that our lymphatic system along with lymphatic vessels and the lymph nodes, they are helping in maintaining our immunity system. ये एक हो गया. इसके साथ साथ मैंने जब आपको ब्लड बताया था और कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको WBC के बारे में बताया था, दैट इज ल्यूकोसाइट के बारे में. मैंने आपको जब ल्यूकोसाइट के टाइप्स बताए थे, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड अग्रेन्युलोसाइट्स, मैंने उसमें भी आपको इस बारे में बताया था कि जो ग्रेन्युलोसाइट्स है उसके 3 टाइप्स होते हैं, एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल. एंड जो अग्रेन्युलोसाइट है उसके 2 टाइप्स आपको एक्सप्लेन किए थे, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट. जिसमें से मैंने आपको लिम्फोसाइट में क्या एम्फसाइज किया था कि लिम्फोसाइट ही है जो एंटीबॉडीज बनाता है. तो अगेन ये लेसन में आप कहीं तो नोट डाउन कर लो. आपको इस लेसन में बार बार एक टर्म आएगा, एंटीजन. एंटीजन. तो एंटीजन का मतलब क्या होगा? एंटीजन का मतलब है कोई भी फॉरेन सब्सटेंस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जो अपने इम्यूनिटी सिस्टम को ट्रिगर कर सकता है या स्टिम्युलेट कर सकता है. समझ में आ गया? तो प्लीज लिख लो, एनी फॉरेन सब्सटेंस
which can invade our body, invade मतलब अंदर जा सकता है अपने बॉडी में, and which are able to stimulate our immune system or immune response is called as antigen. ठीक है, अच्छा अभी एंटीजन अंदर चला गया. एंटीजन कैन बी वायरस, एंटीजन कैन बी बैक्टीरियाज, एंटीजन कैन बी डस्ट पार्टिकल, इट कैन बी एनीथिंग. ऐसी कोई भी चीज जिससे अपनी इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर हो जाए या स्टिम्युलेट हो जाए. अगेन आप एक लेसन में इसके अगेंस्ट में जो बनता है अपने बॉडी में वो कहा जाता है एंटीबॉडीज. तो मैं एंटीबॉडीज को कैसे डिफाइन करूंगी? एंटीबॉडीज वो केमिकल सब्सटेंस है या केमिकल चीज है जो प्रोड्यूस किया जाता है. कौन प्रोड्यूस करता है? अपने इम्यून सेल्स प्रोड्यूस करते हैं इन रेस्पॉन्स टू द एंटीजन. So how can I define in English? It is a protective chemicals produced by immune cell. Protective chemicals produced by immune cell in response to the antigen are called as antibodies. समझ में आ गया? तो ये लेसन में इम्यूनिटी सिस्टम में ये दो चीज बार बार आएंगे, एंटीजन एंड एंटीबॉडी. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड नाउ. तो चलो हम वापस स्लाइड पे चलते हैं. तो देखो इम्यून सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो अपने बॉडी को क्या करता है? अपने बॉडी को फॉरेन सब्सटेंस से रिकॉग्नाइज करवा के देता है, उसके लिए रेस्पॉन्ड करता है. कैसे रेस्पॉन्ड करता है? एंटीबॉडीज बना के रेस्पॉन्ड करता है. और एक बहुत खास बात है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम की कि वो रिमेम्बर करके रखता है एंटीजन को. यस और ये रिमेम्बरिंग पावर के कारण ही हम वैक्सीनेशन बना सकते हैं. आप देख सकते हो आजकल पोलियो का वैक्सीन है, आजकल टीबी का वैक्सीन बच्चों को दिया जाता है, बीसीजी का वैक्सीन दिया जाता है, बहुत सारे निमोनिया के वैक्सीन आते हैं. अगर आप छोटे बच्चों का फाइल देखोगे या फिर आप अपने बचपन का फाइल देखोगे तो आप देखोगे कि आपको 2 साल तक कितने सारे वैक्सीन दिए गए थे. तो ये वैक्सीन कैसे बन सकता है? तो वैक्सीन बनने का ये की फैक्टर है कि अपना जो इम्यूनिटी सिस्टम है इट इज हैविंग अ पावर ऑफ रिमेम्बरिंग. मेमोरी पावर है उसके पास. अभी आप 11th का पढ़ा हुआ 12th में भूल जाते हो, पर आपका खुद का जो सिस्टम आपके बॉडी में काम कर रहा है वो एक बार अगर उसने एंटीजन से मिल लिया तो लाइफ में वो कभी उस एंटीजन को भूलता नहीं है. समझ में आ गया मेरी बात? तो जब कभी वापस वही एंटीजन अटैक करेगा अपने बॉडी में तो तुरंत अपना इम्यूनिटी सिस्टम एंटीबॉडीज बनाकर उसको तुरंत खत्म कर देता है. So this is a very powerful part of our immunity system. We will be learning everything in detail in this particular lesson. So it includes our lymphoid organs. You can see clearly in the diagram all the lymphoid organs you can see. Yes, it includes tissues, it includes the cell, and it includes the antibodies. Yes, immunity system helps in allergic condition. It helps in autoimmune disease also. There are many disease which are autoimmune disease. ये अलग तरीके की बीमारी होती है. ये बीमारी जो है autoimmune disease में इन शॉर्ट बता देती हूँ आपको. ऑटो मतलब खुद का, इम्यून मतलब खुद का इम्यूनिटी सिस्टम ही जब खराब हो जाएगा, है ना. अगर मेरे सोल्जर्स ही बीमार हो गए और मेरे सोल्जर्स मेरे ही देश में अटैक करने लगेंगे तो मेरा देश बचेगा क्या? सेम थिंग लाइक दिस ओनली. तो ये जो ऑटोइम्यून डिजीज होता है इसके अंदर अपना बॉडी अपने ही सेल्स को मारने लगता है. तो ऐसी बीमारियों को हम कौन से कैटेगरी, कौन से हेडिंग में बोलेंगे? ऑटोइम्यून डिजीजेस. एंड यस whenever there is a severe problem of any or the organs, जैसे कोई ऑर्गन डैमेज हो चुका है पूरी तरह से, ज्यादा करके आजकल किडनी का ट्रांसप्लांट ज्यादा होता है. तो अगर किसी का किडनी डैमेज हो गया और उसको ट्रांसप्लांट करने की नौबत आ गई है तब भी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि किसी और का किडनी अपना इम्यूनिटी सिस्टम तभी एग्री करेगा जब अपना खुद का जिसको ट्रांसप्लांट किया जा रहा है उसका इम्यूनिटी सिस्टम लो है, तभी हो पाएगा. तो ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर लेसन में समझोगे और पढ़ोगे. अच्छा, तो अगर हम इम्यूनिटी सिस्टम की बात करेंगे तो दिस कंसेप्ट वाज बीन स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर इन इंग्लैंड.
सो अगेन नेम ऑफ जो इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट है उनका नाम जानना आपको बहुत जरूरी है. He developed cowpox vaccine, which was against the smallpox virus. This you are learning from your lower classes. So just now I've told you about the difference between the antigen and the antibodies. So antigens are nothing but the foreign substance. It can be virus, it can be bacteria, it can be anything which our body identify as foreign. So it is called as antigen, which can induce to produce antibodies. And antibodies are nothing but the chemical substance or the proteins which are produced in response to the antigen. Please यहाँ पे ये भी mind करो बेटा, हर एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप का एंटीबॉडीज बनता है. ऐसा नहीं है कि अभी आप बैक्टीरिया के बारे में ही बात करोगे तो देयर आर मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज. तो आप मुझे बोलोगे हर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया के लिए एक ही टाइप का एंटीबॉडीज बनता है क्या? तो आंसर इज नो. हर एक बैक्टीरिया के लिए अलग अलग टाइप का एंटीबॉडीज बनता है. सिमिलरली फॉर वायरस एंड सिमिलरली फॉर एनी फॉरेन सब्सटेंस. सो इसके लिए अपने बॉडी को एंटीबॉडीज बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. एंटीजन को देखकर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है. इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, एंटीजेंस आर ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट whereas antibodies are of high molecular weight. Again see the diagram come down. You can see that ये जो वाई शेप स्ट्रक्चर, जो पर्पल कलर के वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो सब एंटीबॉडीज हैं, और जो ये राउंड स्फेरिकल शेप के दिख रहे दिस आर नथिंग बट दी एंटीजन. ठीक है, एंटीजन के ऊपर जो कोटिंग है येलो कलर का उसको ही देखकर एंटीबॉडीज बनते हैं. So now let us begin in detail with the types of immunity system. So please note down, pen paper लेकर बैठे हो I hope. चलो immunity लिखो और उसको दो पार्ट में डिवाइड करो. Immunity system लिखो और उसको दो पार्ट में डिवाइड करो. So there are basically two types of immunity system as innate immunity and acquired immunity. Innate immunity and acquired immunity. चलो जहां पे आपने इनेट इम्यूनिटी लिखा है ना उसमें एक और टर्म को लिखो. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक टाइप, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी को एक और नाम से जाना जाता है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. सो बोर्ड एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको इनेट नाम से ही क्वेश्चन पूछा जाए. आपको नॉन स्पेसिफिक पूछा तो भी उसका वही आंसर आना चाहिए, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है एज नेचुरल इम्यूनिटी. तो आई होप आपने तीनों नाम नोट डाउन कर लिए हैं. इनेट इम्यूनिटी, also called as non-specific immunity, also called as natural immunity. ठीक है, चलो अब मैं उसका मतलब आपको समझा रही हूँ. मैंने आपको उसके तीनों नाम बता दिया, अब उसका मतलब समझ के लो. तो इनेट इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी है जो कब प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ, जो जन्म से प्रेजेंट होती है. ऐसे इम्यूनिटी को हम क्या बोलेंगे? इनेट इम्यूनिटी. ठीक है. अच्छा, एक्वायर्ड के बारे में भी लिख लो आप, बाजू में लिखा ही होगा आपने एक्वायर्ड. तो एक्वायर्ड मैं आपको बाद में सिखाऊंगी, पर उसके अलग अलग नाम लिख लो आप लोग. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्योंकि इनेट को नॉन स्पेसिफिक बोलते तो इसका अपोजिट है ये. इसके लिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी को बोला जाता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी. समझा? या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है एडेप्टिव इम्यूनिटी. तो मैं प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल द चिल्ड्रंस टू राइट डाउन द अदर नेम ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी. एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एडेप्टिव इम्यूनिटी. इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले हम इनेट इम्यूनिटी अच्छे से डिटेल में समझेंगे. इज दैट वेरी क्लियर? चलो तो हम पहले इनेट इम्यूनिटी की तरफ चलते हैं. तो इनेट इम्यूनिटी में मैंने आपको क्या बताया कि ये ऐसी इम्यूनिटी है जो
बर्थ से प्रेजेंट है। जो एक छोटा बच्चा जो 1 घंटे का है या 1 मिनट का जो बच्चा है उसमें भी इम्यूनिटी प्रेजेंट है, उसको हम बोलेंगे इनेट इम्यूनिटी। अच्छा, अब ये जो इनेट इम्यूनिटी जो 1 दिन का बच्चा है उसको तो अब इन्फेक्शन नहीं हुआ है ना, अभी 1 मिनट के बच्चों को तुरंत कौन सा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बच्चे के बॉडी ने कोई इन्फेक्शन नहीं झेला है, किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन नहीं झेला है, पर ये जो इनेट इम्यूनिटी है वो कैसे काम करती है, फिर ये बैरियर्स से काम करती है। So this innate immunity has different barriers. Barriers का मतलब क्या होता है, रुकावटें। Yes, it has different barriers for the entry of foreign agents into the body. मतलब जो एक बच्चा है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसके बॉडी में ऑलरेडी अलग अलग टाइप के बैरियर्स है जिससे कि वो फॉरेन सब्सटेंस को अंदर नहीं जाने देगा बॉडी के। तो वो कौन कौन से हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हो चारों नाम। दे आर फिजिकल बैरियर, ऑल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर ऑल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर। मैं आपको हर एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, पहले लिख लो। दूसरे बैरियर का नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। तीसरा बैरियर का नाम है सेल्यूलर बैरियर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फैगोसाइटिक बैरियर। और जो लास्ट वाला है उसका नाम है साइटोकाइनिन, या फिर आप उसको एक और नाम से लिख सकते हो, इन्फ्लामेटरी बैरियर। यस, तो प्लीज नोट डाउन द थिंग। फिजिकल बैरियर ऑल्सो कॉल्ड एज एनाटॉमिकल बैरियर, सेकेंड वन इज फिजियोलॉजिकल बैरियर, थर्ड वन इज सेल्यूलर बैरियर जिसको मैंने एक और नाम आपको बताया फैगोसाइटिक बैरियर, और जो चौथा नाम बताया है उसका नाम है साइटोकाइनिन बैरियर ऑल्सो कॉल्ड एज इन्फ्लामेटरी बैरियर्स। ठीक है, तो चलो पहले हम आप डायग्राम देख के आप थोड़ा सा आपको एक आइडिया में देती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब देखो फिजिकल बैरियर में आपको किसका डायग्राम दिख रहा है, दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ स्किन। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब है जब बॉडी का फिजियोलॉजी चेंज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर, पीएच, सिक्रीशन कुछ हो रहा है। सेल्यूलर बैरियर में आप देख सकते हो, आप फैगोसाइटिक सेल्स देख सकते हो, इसमें न्यूट्रोफिल्स देख सकते हो, मोनोसाइट्स देख सकते हो। एंड साइटोकाइनिन बैरियर मतलब जब कुछ प्रोटीन्स या कुछ केमिकल्स सिक्रेट किए जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ साइटोकाइनिन बैरियर्स। सो लेट अस लर्न ईच वन इन डिटेल। सो सबसे पहले हम आते हैं फिजिकल बैरियर्स पे। तो फिजिकल बैरियर में दिस बैरियर्स विल प्रिवेंट द एंट्री ऑफ अ फॉरेन सब्सटेंस। ठीक है, ये फिजिकल बैरियर्स ऐसे बैरियर्स हैं जो हमारे बॉडी के अंदर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जाने से बचाएंगे। तो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, स्किन है ना। स्किन एक ऐसा बैरियर है जो कोई भी चीजों को एंट्री करने नहीं देगा अपने बॉडी के अंदर। सो द फर्स्ट एग्जांपल फॉर द फिजिकल बैरियर इज द स्किन। लिख लो, फिजिकल बैरियर का फर्स्ट एग्जांपल इज स्किन which will not allow or which will prevent the entry of foreign bodies. फिजिकल बैरियर में दूसरा किसका नाम आता है, म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस कोटिंग। पहले अभी आप ये फिगर को मत देखो, यहीं पे देखो बेटा, म्यूकस कोटिंग। अभी यू नो दैट अपना ऑलमोस्ट ऑल सिस्टम में म्यूकस ग्लैंड्स प्रेजेंट है। हमने रेस्पिरेटरी में भी पढ़ा, मैंने आपको रेस्पिरेटरी में बताया था कि जो भी हम इनहेलेशन करते हैं उस वक्त डस्ट पार्टिकल को वो ट्रैप करके रखता है। वैसे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट में है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में है। इनफैक्ट इन ऑल सिस्टम देयर इज अ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट। तो ये जो म्यूकस है ना, ये भी क्या काम कर रहा है, ट्रैपिंग का काम कर रहा है ऑफ फॉरेन बॉडीज टू एंटर इनसाइड अवर सिस्टम। ठीक है, तो मैंने फिजिकल बैरियर्स में आपको कौन से दो चीज एक्सप्लेन किए हैं, लिख लो। फिजिकल बैरियर्स इंक्लूड्स skin and the mucous membrane. Skin and the mucous membrane. Skin will prevent the entry, whereas mucus will trap the dust and the
microbes. Is that very clear to all of you? चलो अब हम दूसरे पे आते हैं, that is the physiological barriers पे आते हैं. फिजियोलॉजी मतलब जब बॉडी का फिजियोलॉजी चेंज हो रहा है. फिजियोलॉजी चेंज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? मतलब या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जा रहा है बॉडी का, या तो पीएच बढ़ जा रहा है, या तो वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करने लग रहा है. तो देखो अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. जैसे अगर हमें कोई इन्फेक्शन हुआ है तो सबसे पहला क्या होता है, हमें फीवर आता है. फीवर आ गया मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया. तो फीवर क्यों आया? क्योंकि ये जो बैक्टीरिया या वायरस जो अपने बॉडी में एंटर किया है वो हमारे जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उतने में ही वो सरवाइव कर पाता है. अगर हमारा बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया, अबाउट 100 या 100 से क्रॉस कर गया, तो कुछ बैक्टीरिया या वायरस तो ऐसे ही मर जाते हैं क्योंकि वो उतने कंडीशन में सरवाइव नहीं कर पाते. समझ में आया आपको मेरी बात? सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में जो हमें फीवर आता है, दैट इज अ इंडिकेशन दैट समथिंग इज रॉन्ग विथ आवर बॉडी. कुछ तो भी अंदर है जिसके कारण आपके बॉडी ने आपका टेम्परेचर राइज कर दिया है. समझ में आ गया? बॉडी टेम्परेचर मतलब फीवर. वैसे ही लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ पीएच. अगर आपने बाहर का कुछ भी जंक फूड खाया और समझो वो जंक फूड बहुत ही कंटामिनेटेड टाइप का था, अब क्या होगा नेक्स्ट डे? आपके स्टमक की एसिडिटी बढ़ जाएगी. अगेन यू नो दैट एसिडिक कंडीशन में कोई भी माइक्रोब्स नहीं रह पाते हैं. सो ये जो आपके स्टमक में जो एसिडिटी बढ़ी है, वो एसिडिटी क्यों बढ़ी है? आपको तकलीफ देने के लिए नहीं, आपके अंदर जो बैक्टीरिया या वायरस है उसको मारने के लिए. समझ में आ गया? सो पीएच की मैंने बात की. चलो हम सिक्रीशन की बात करते हैं. वैसे ही जैसे अगर आपके आईज में कुछ चला गया तो तुरंत क्या होगा? टीयर्स आने लगेंगे, है ना? तो टीयर्स आ रहे हैं मतलब ये सिक्रीशन है. तो टीयर्स क्यों आ रहे हैं? टीयर्स के अंदर एक एंजाइम होता है, लिख लो कौन सा एंजाइम होता है. टीयर कंटेन्स लाइसोजाइम्स, LYSOZYME, लाइसोजाइम, which is a bacteriolytic enzyme. बैक्टीरियोलाइटिक का मतलब क्या होगा? एंटीबैक्टीरियल, है ना? बैक्टीरियोलाइटिक में बोल रही हूँ. लाइटिक का मतलब बायो में क्या होता है? ब्रेकिंग डाउन, या फिर मैं उसको एंटीबैक्टीरियल भी बोल सकती हूँ. सो इट इज अ एंटीबैक्टीरियल एंजाइम. यस. तो जब भी आप ट्रेवल कर रहे हो तो अगर आपकी आंख में पानी आ रहा है या टीयर्स आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट? It is killing the bacteria with the help of this lysozymes. Similarly, when your body is infected with virus, अगर आपके बॉडी में कोई वायरस गया है तो आपके सेल्स क्या रिलीज करेंगे? एक ग्लाइकोप्रोटीन, और वो ग्लाइकोप्रोटीन का नाम है इंटरफेरॉन्स. कैन बी आस्क्ड एज एमसीक्यू इन द बोर्ड एग्जाम. लिख लो इंटर, INTER FERONS, interferons. So what is the definition of interferons? When it is a certain kinds of cell when infected with virus releases interferons, which is a glycoprotein. What is the function of this interferon? It will make the surrounding cell resistant to viral infection. Okay? It will make the surrounding cells resistance to the viral infection. So physiological barrier में मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया? I've told you about body temperature, I've discussed about the body pH, जो मैंने आपको स्टमक का एसिडिटी का एग्जांपल दिया. देन सलाइवा के अंदर भी हमने पढ़ा है न्यूट्रिशन लेसन में कि जो एंजाइम होता है वो क्या करता है? इट इज अगेन एंटीबैक्टीरियल. टीयर्स में अभी मैंने आपको बताया लाइसोजाइम्स होता है जो एंटीबैक्टीरियल होते हैं. इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो अभी तक हमने दो बैरियर समझ लिया. फिजिकल बैरियर समझा, फिजियोलॉजिकल बैरियर समझा. अब फिजियोलॉजिकल बैरियर की अगर हम बात करते हैं तो आपकी टेक्स्ट बुक में एक छोटा सा नए वाले टेक्स्ट बुक में एक दिया है अबाउट कंजक्टिवा. तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, यू कैन सी दैट आवर आईज हैज दिस. Let us see the parts of these eyes. So here we are having lacrimal glands, which are the tear glands.
हाँ, and here there is a layer of this conjunctiva, ठीक है, which is adherent to cornea. Adherent means it is touching to our cornea. When our eye, now come to the written part, when our eye is susceptible to infection, when lacrimal secretion is absent. जब अपना lacrimal secretion नहीं होता है, उस वक्त lacrimal secretion मतलब tear gland, अगर हमारा टीयर ग्लैंड सिक्रीट नहीं कर रहा है, वो अगर उसका सिक्रीशन एब्सेंट है, तो हमारा आईज तुरंत इन्फेक्शन पकड़ता है. Because we know that this lacrimal or the tear glands contain antibacterial substance called as the lysozyme, and lysozyme is active against the gram positive bacteria. तो जब भी किसी को कंजेक्टिवा होता है, मोस्टली वो कब होता है, जब आपका आईज में ये जो लाइजोजाइम्स की कमी होती है, तब मोस्टली आपको कोई भी आई के इन्फेक्शन होते हैं. फिर वो कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है. एंड प्लीज इसको भी नोट डाउन करो कि लाइजोजाइम्स जो होते हैं वो किसके लिए एक्टिव होते हैं, मोस्टली फॉर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज. आई होप you know the difference between the gram positive and negative bacteria, which we have already discussed in the 11th standard. ठीक है. So now there are antimicrobial substances which are present in the blood and the tissues. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम cellular barriers पे आ गए हैं, ठीक है. अब cellular barriers की अगर हम बात करेंगे तो हम phagocytic barriers की बारे में बात कर रहे हैं. फैगोसाइटिक बैरियर्स में मैंने आपको क्या बताया, जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेसन में पढ़ा था, वो था न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट्स, है ना. न्यूट्रोफिल्स भी फैगोसाइटिक था एंड मोनोसाइट भी कैसा है, फैगोसाइटिक है. उसके अलावा भी कुछ सब्सटेंस है, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस है, जो अपने ब्लड एंड टिश्यूज में होते हैं. तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दिस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम. कॉम्प्लीमेंट मतलब वैसे तो न्यूट्रोफिल है ही, वैसे तो मोनोसाइट है ही, उसके साथ साथ ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी है, which contain 30 serum protein. Now you know the difference. What do you mean by serum? So it has more than 30 serum protein which is circulating in our blood in an inactive state. ये एक्टिव कब होंगे, जैसे ही एंटीजन आएगा ये एक्टिव हो जाएंगे. So presence of any pathogens will activate our complement cascades to eliminate pathogens. I hope this is very clear to all of you. So वैसे अभी तो मैंने आपको बताया, वैसे तो हमारे पास न्यूट्रोफिल काम करते ही हैं, वैसे तो हमारे पास मोनोसाइट काम करते ही हैं, उसके साथ साथ एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी अपने बॉडी में काम करता है, और ये इनएक्टिव में ही रहता है. जब भी कोई पैथोजन अपने बॉडी में एंटर करेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और पैथोजन को मारने की या एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा. तो फिर आप मुझे बोलोगे कि मैडम कितने सारे लोग हैं जो ये बैक्टीरिया के लिए मदद करते हैं. तो यस, अपना बॉडी बहुत सारे सिस्टम्स के थ्रू बैक्टीरिया या वायरस को मारता है. एंड अगेन ये इतना अलर्ट क्यों रहता है, बिकॉज आप कोई भी एनवायरनमेंट में जाओ, वहां पे भले हमें वो दिखाई नहीं दे रहा है, हम भले घर में बैठे हैं, फिर भी देयर आर वायरस एंड बैक्टीरियाज प्रेजेंट इन द एयर. ठीक है. सो innate में cellular barriers में which I've told you they are phagocytic in nature. You can see the diagram, which these diagrams we have already seen in the last lecture when we have learned about the WBC. So our WBC में neutrophils which we also call as a PMN क्यों बोलते हैं, ये इसका रीजन मैंने आपको बताया था. एंड मोनोसाइट्स भी हैं, नेचुरल किलर लिम्फोसाइट्स भी हैं, मैक्रोफेजेस भी हैं. ये सब के सब मिलकर क्या करते हैं, फैगोसाइटिक नेचर में है या सेल्यूलर बैरियर्स करते हैं. चलो, अगर सेल्यूलर बैरियर की नाम आता है तो मैं आपको लिवर के बारे में भी याद दिला दूं. हमने 11th स्टैंडर्ड में लिवर में पढ़ा था कि कफर सेल्स होते हैं, KUPFFER कफर सेल्स ऑफ लिवर, दे आर अगेन doing this phagocytic barrier or the cellular barrier, if you remember. ठीक है. So now these phagocytic cells are of two types. छोटे छोटे cells तो macrophages, बड़े बड़े cells तो macrophages. ठीक है. अच्छा, एक क्लास ऑफ lymphocytes है, lymphocyte मतलब WBC, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स.
इट इज ऑल्सो डूइंग अ नॉन स्पेसिफिक, मतलब कि इनेट डिफेंस अगेंस्ट द वायरल इन्फेक्शन एंड द ट्यूमर्स। तो अभी हमने पढ़ा, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट कैसाड भी पढ़ा, इसके साथ साथ हमने और एक चीज पढ़ लिया, अभी एनके भी पढ़ लिया, एनके सेल्स भी पढ़ा। ये एनके सेल्स क्या हैं? लिम्फोसाइट जैसे हैं या डब्ल्यूबीसी हैं, क्लास ऑफ डब्ल्यूबीसी हैं, जो क्या करते हैं? नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक मतलब अभी मैंने आपको बताया इनेट इम्यूनिटी करते हैं, पर ये किसके लिए होते हैं? ज्यादा करके ये वायरल इन्फेक्शन या ट्यूमर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, सबको समझ में आ गया? सो अगेन जस्ट हैव अ लुक फॉर दिस न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट्स। ठीक है, चलो अब हम चौथा बैरियर समझते हैं। तो चौथे बैरियर का नाम है साइटोकाइनिन बैरियर, या फिर मैंने एक और नाम इसके बारे में बताया था, दैट इज इन्फ्लामेटरी बैरियर। ठीक है, अच्छा अब इन्फ्लामेटरी बैरियर का मतलब क्या है? अब जब भी कभी अपने टिश्यू को इन्फेक्शन होगा या इंजुरी होगा, तो वो हमेशा रेड हो जाता है, रेडनेस होता है, स्वेलिंग होता है, पेन होता है, या फिर देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट। ये सब चीजें होती है कि नहीं? जैसे अगर आपको कोई चीज का इन्फेक्शन हो गया तो वो जगह लाल हो जाएगी, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाएगा, या फिर वहां पे पेन होगा, या फिर देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ हीट, आपको बहुत गरम गरम फील होगा वो जगह में। तो ये क्यों होता है? It is due to this response is due to release of some chemicals, and the name of the chemical is, note down, the name of the chemical is histamine and prostaglandins. हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। हिस्टामाइन मैंने आपको पढ़ाया था, अगर जो बच्चों ने 11 मेरा रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन लेसन अच्छे से समझा था, मैंने आपको बताया था कि बेसोफिल है जो हिस्टामाइन बनाता है। ठीक है, बेसोफिल हिस्टामाइन बनाता है। फिर आप मुझे पूछोगे मैम प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है? तो प्रोस्टाग्लैंडिन आर प्रोड्यूस्ड बाय मास्ट सेल। मास्ट सेल, ये भी आपने 11th में पढ़ा है, बट आई होप आप सब भूल गए होंगे। मास्ट सेल ऑफ एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू, याद है आपको एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू? उसमें मास्ट सेल था। ये मास्ट सेल जो है ना, वो क्या बनाता है? प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का केमिकल बनाता है। तो क्या बोला मैंने? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ मेरा सेंटेंस। जब भी हमें कोई इन्फेक्शन होगा, जस्ट सी व्हाट आई एम सेइंग, इन्फेक्शन और टिश्यू इंजुरी causes redness, swelling, pain and production of heat. Why it is so? It is because in response to release of chemicals such as histamine by basophil and prostaglandin by mast cell of our connective tissue. ठीक है, इज दैट वेरी क्लियर? ये फिर आप मुझे बोलोगे कि ये बनता क्यों है? अगेन टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैक्टीरिया और एनीथिंग वॉट एवर इज द एंटीजन। तो उससे बचने के लिए अपना बॉडी ये बनाता है। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अभी मैंने आपको इंटरफेरॉन के बारे में बताया था। तो इंटरफेरॉन भी क्या है? एक सिक्रीशन है। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो प्रोटीन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंटरफेरॉन, which again protect from the infection, any of the viral infection. Is that very clear to all of you? तो मैं एक बार वापस रिपीट कर रही हूँ बेटा, मैंने आपको अभी तक क्या क्या पढ़ाया। We have seen there are, तब तक रोके रहेंगे जब तक कि एंटीबॉडीज नहीं बने। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है। तो तब तक तो ये बैक्टीरिया या वायरस अपने पूरे बॉडी को इफेक्ट कर जाएंगे, तो तब तक बचने के लिए ये इनेट इम्यूनिटी काम करता है। सो फिजिकल में मैंने आपको एग्जांपल बताया स्किन एंड म्यूकस का। फिजियोलॉजी में मैंने आपको एग्जांपल बताया फीवर, फीवर बोल लो या बॉडी टेम्परेचर बोलो, पीएच बोलो या सिक्रीशन के बारे में बताया। सेल्यूलर बैरियर में मैंने आपको न्यूट्रोफिल्स एंड मोनोसाइट के बारे में बताया, उसके साथ साथ मैंने आपको लिवर के बारे में कफर सेल बताया। एंड साइटोकाइनिन्स में मैंने आपको हिस्टामाइन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में बताया। वेरी क्लियर? इसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि कुछ और भी सिस्टम है जो इनेट इम्यूनिटी में मदद करते हैं। वो मैंने आपको बताया एनके सेल्स, और आपको मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट्री कैसाड्स के बारे में। तो जस्ट हैव अ रिकैप, क्या क्या पढ़ा आपने? सो सेल्यूलर में आपने स्किन एंड म्यूकस पढ़ा,
सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, फिजिकल में आपने स्किन एंड म्यूकस पढ़ा, फिजियोलॉजिकल में यू हैव सीन स्टमक, सलाइवा, टीयर एंड ऑल। फिर मैंने आपको बताया कि अगर ये लाइजोजाइम्स एब्सेंट है अगर अपने आईज में, तो अपने आई में कोई भी तरीके का इन्फेक्शन आसानी से हो सकता है। तो कंजक्टिवा एक ऐसा एग्जाम्पल है उसका, जिसमें अगर अपना लाइजोजाइम कम हो गया कभी भी तो तुरंत कंजक्टिवा हो सकता है। फिर मैंने ये कॉम्प्लीमेंट कैसाड्स के बारे में आपको एक्सप्लेन किया कि भले अपने पास WBC है, अपने पास इम्यूनिटी सिस्टम है, पर एक और सिस्टम है जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सिस्टम है, which will again eliminate the pathogens. फिर I have explained you about the cellular barrier, in which I have explained you about the neutrophils, monocytes and all. Then I've told you about the cellular factors also. NK cells are there. Cellular factors मतलब cell वाले, तो NK cells, natural killer cells, they are helpful for removing the viral infections and the tumors. Yes. एंड दी साइटोकाइनेंस बैरियर्स में मैंने आपको इंटरफेरॉन्स बताया, मैंने आपको प्रोस्टाग्लैंडिन बताया, मैंने आपको हिस्टामाइन बताया। वेरी क्लियर, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ चुका है। तो चलो अब हम और आगे बढ़ते हैं। आपको एक और चीज आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है, ये आपको जस्ट यू हैव टू मग अप और यू हैव टू बाय हैट फॉर दिस। This is acute phase proteins, APPS, acute phase protein. See what I've written on the screen. Infection or injury, जब भी हमें कुछ इन्फेक्शन होगा या इंजुरी हो गया तो क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन द प्लाज्मा प्रोटीन कॉल्ड एज द APPS। थोड़े देर के लिए, एक्यूट का मतलब जो थोड़े देर के लिए होता है बेटा, तो एक्यूट फेज प्रोटीन मतलब जब भी मुझे इन्फेक्शन हुआ है थोड़े देर के लिए मेरा प्लाज्मा प्रोटीन एकदम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन कौन से प्रोटीन्स है ये आपको याद करने हैं। इतने सारे प्रोटीन्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट बुक में। ये कौन कौन से प्रोटीन हैं जो थोड़े टाइम के लिए बनते हैं और इंक्रीज होते हैं जब भी हमें इन्फेक्शन होता है। You can see on the screen, they are C-reactive proteins, mannose binding protein, alpha-1 acid glycoprotein, serum amyloid protein, etc. ये सारे प्रोटीन्स आप याद रखो, because this can be used for asking the 1 mark question or the MCQ in your board exam. काम क्या है, क्योंकि हम इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ रहे हैं तो क्या काम होगा, ऑब्वियसली इट विल प्रिवेंट फ्रॉम टिश्यू इंजरी, इट विल प्रमोट द रिपेयर ऑफ द इन्फ्लेमेटरी लेशंस। लेशंस का मतलब क्या होता है, जो भी रेडनेस हुआ है ना उसको लेशंस बोलते हैं। तो जो डैमेज हो चुके सेल है इन्फ्लेमेटरी के कारण, जो रेड हुआ था, जो स्वेलिंग हो गया था, उसको रिपेयर करेगा। और क्या करेगा, इट विल एनहांस द होस्ट रेजिस्टेंस। होस्ट मतलब कौन है, हमारा खुद का रेजिस्टेंस पावर बढ़ाएगा, एनहांस करेगा। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने एक्यूट फेज प्रोटीन के बारे में भी समझा। इज दैट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So with that we have finished with the innate type of immunity system. Now I will tell you about the acquired immunity. As now we are having only 15 minutes, so I will be discussing about the unique features of this acquired immunity. ठीक है, चलो पहले आप लिख लो ये बेटा, acquired immunity का मतलब क्या है, लिखो प्लीज। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है स्पेसिफिक इम्यूनिटी या फिर एडेप्टिव इम्यूनिटी। इसका बेसिकली मतलब क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब है जो अपना बॉडी एक्वायर करता है या अडेप्ट करता है इन अवर लाइफ टाइम। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, a best example which I can give you and you can it will be easily understood by you is a chicken pox. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चे को चिकन पॉक्स होता है तो जनरली नॉर्मली उसको सेकेंड टाइम नहीं होता है। मैं बोल रही हूँ वर्ड्स को अच्छे से समझो, जनरली नॉर्मली नहीं होता है नेक्स्ट टाइम। दैट अगेन डिपेंड अपॉन इट्स ओन इम्यूनिटी सिस्टम। ऐसा क्यों, क्योंकि
एक बार जब आपके एक्वायर्ड इम्यूनिटी ने उसको देख लिया, समझ लिया, वो मेमोराइज कर लेता है, और जब भी कभी ये चिकन पॉक्स का वायरस फिर कभी आएगा तो तुरंत उसके लिए एंटीबॉडीज देकर उसको मार देता है। तो ऐसे बहुत सारे इन्फेक्शन होके गए हैं अपने बॉडी में, जिसके लिए अपना बॉडी एंटीबॉडीज बनाता जा रहा है, और जब तक हम जिएंगे तब तक वो अलग अलग एंटीजन के लिए एंटीबॉडीज बनाते जाएगा और उसको मेमोराइज करता जाएगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि वायरस जो है, कॉमन कोल्ड जो है, जिसको हम कोरिजा बोलते हैं, जो कि कोरोना वायरस इज ऑल्सो कॉमन कोल्ड ओनली वायरस, सो इसका क्यों नहीं होता है? तो वायरस का प्रॉब्लम क्या है ना बेटा, कि जो वायरस का आउटर कोट स्पेसिफिक है उसके लिए एंटीबॉडीज बनते हैं और वही एंटीबॉडीज इस्तेमाल होते हैं। पर ये जो वायरस है, जो कॉमन कोल्ड वाले वायरस है ना, उनका जो बॉडी कोट है दे चेंज, क्योंकि वो बार बार चेंज करते हैं तो उसके लिए एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लगता है। तो आपने देखा होगा, अभी ये कोरोना की बात छोड़ दो, जब पहले कभी हमें सर्दी खांसी होती थी तो 7 डेज में वो सर्दी खांसी ठीक होना ही था। अगेन दैट डिपेंड्स अपॉन योर इम्यूनिटी। इफ योर इम्यूनिटी इज वेरी गुड, 7 डेज में जनरली नॉर्मली ये सर्दी खांसी ठीक हो जाता था। क्यों 7 डेज का टाइम स्पेंड क्यों लगता था? बिकॉज पहले आपकी इनेट इम्यूनिटी ने उस वायरस पे काम किया, फिर आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसको पहचानेगा, फिर उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा और फिर उसको पूरी तरह मारेगा। तो ये पूरे प्रोसेस में कम से कम 7 डेज लगता था। अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो, मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी है, अच्छे से काम कर रही है, तो कम से कम 7 डेज में आपका नॉर्मल कोल्ड फ्लू जो है वो खत्म हो जाता था। ठीक है, बट अगेन, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या हो गया? आपको समझ में है मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ? कि एक्वायर्ड मीन्स इट इज एडेप्टिव, जो आपका बॉडी हर एक आपके लाइफ टाइम में जो पैथोजेंस एंटर करते जाएंगे उसको वो कैसे कैसे रिस्पॉन्स में मार रहा है, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो आपको बेसिकली इस लेसन में एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिटेल में पढ़ना है विथ ऑल इट्स टाइप। ठीक है, उसके सारे टाइप्स भी आपको पढ़ने हैं। चलो, पहले हम ये स्टार्ट होने के पहले लेट अस नो some unique features of this acquired immunity. So please note down unique features of acquired immunity. तो इसके क्या खास बात है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की क्या क्या खासियत है? तो सबसे पहली खासियत क्या है इसकी, कि इट इज स्पेसिफिसिटी। लिखो, स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का मतलब क्या होता है? इट इज वेरी वेरी स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ पैथोजन। ठीक है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर एंटीजन के लिए अलग अलग टाइप का एंटीबॉडीज बनता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, so the first property is, or the first unique feature is, it is showing specificity. ठीक है, it is very specific for each type of pathogen. ठीक है, second इसकी important खास बात क्या है? It is showing, it is having the property of diversity. तो second point लिखो, diversity. Now what is this diversity? It can recognize, पहचान सकता है ये vast और varieties of pathogens. ये varieties of pathogens को पहचान सकता है। तो ये इसकी डाइवर्सिटी का, इसका ये एक स्पेशल फीचर है कि ये कोई भी एंटीजन हो तो उसको ये पहचान तो सकता है। अगर पहचान ही नहीं पाएगा तो एंटीबॉडीज कैसे बनाएगा? ठीक है, सो it can recognize a vast varieties of this diverse pathogen. ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड इसका फीचर क्या है? डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या? भेदभाव, है ना? तो ये किसके बीच में भेदभाव करता है? अपने खुद के सेल एंड नॉन सेल्फ सेल। अब इसका मतलब क्या है? ये अपने खुद के सेल को पहचानता है, इसलिए कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचाता है।
और बाहर के सेल्स को बहुत अच्छे से पहचानता है और उसको तुरंत मार गिराता है। तो ये क्या हो गया उसकी प्रॉपर्टी? डिस्क्रिमिनेशन। Yes, it can discriminate or it can differentiate between the own body cell that we call as a self cell and the foreign cells which we call as the non-self cells. Is that very clear? चलो चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स या क्या इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये है मेमोरी पावर। तो आपको अपने खुद के सिस्टम से कुछ सीखना चाहिए, है ना। मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपका खुद का सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, हर एक सिस्टम इतना परफेक्ट है कि इट इज गिविंग यू सम और द अदर मैसेज टू हाउ टू बिहेव, है ना। तो अपना एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम जो है ना, वो भी एक आपको एक मैसेज दे रहा है कि मेमोराइजेशन रखो, मेमोरी रखो स्ट्रॉन्ग। तो मेमोरी कैसा है कि इट रिटेन्स द मेमोरी ऑफ इट्स एनकाउंटर। एनकाउंटर मतलब जो पुलिस लोग करते हैं वही नहीं, जिसने इसको पहले मारा था वो उसको बराबर से याद रखता है। तो सेकेंड एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, अगर वही वाला वापस आ गया तो रेस्पॉन्स कैसा रहेगा? एकदम स्ट्रॉन्ग रहेगा और क्विक रेस्पॉन्स रहेगा। ठीक है, तो मेमोरी हेडिंग में आप क्या लिखोगे? इट रिटेन्स द मेमोरी ऑफ इट्स एनकाउंटर। So second encounter with the same pathogen brings about quicker and stronger immune response. Am I very clear to all of you? तो मैंने आज आपको unique features of acquired immunity explain की। ठीक है, acquired immunity का मतलब क्या होता है? ऐसी immunity जो हम acquire करते हैं during our lifetime। ठीक है, उसके 4 फीचर्स हमने समझा। स्पेसिफिसिटी, इट इज स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ पैथोजन। वी हैव लर्न डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मींस इट कैन रिकॉग्नाइज अ वास्ट वैरायटीज ऑफ पैथोजन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब इट कैन डिफरेंशिएट between our own body cell and the foreign cell. And memory, yes, it retains the memory of its encounter. So the second encounter with the same pathogen is always a quicker and a stronger response. Am I very clear to all of you? Yes. So this is what we will be learning today about this immunity. Tomorrow we will be learning, see all these things we have learned today. Features of acquired immunity. Tomorrow now we will be learning about the types of acquired immunity. ठीक है, तो जस्ट हैव अ रिकैप। तो आज आपको होमवर्क क्या है, टुमारो के लिए आपको होमवर्क क्या है? मैंने आज आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया? मैंने आपको पहले हेल्थ एक्सप्लेन किया, फिर आपको डिजीज के बारे में एक्सप्लेन किया, फिर मैंने आपको इम्यूनिटी सिस्टम क्या है वो एक्सप्लेन किया। Distinguish between antigen and antibody. I will show all the slides so that it will be recap for all of you. First, we have discussed about the health in detail. Yes. Then we have discussed about disease. Again, there are 2 types of diseases which can be transmitted. So infectious, which cannot be transmitted, means non-infectious. Then we have come across the word called as pathogen. Pathogen is a disease-causing organism. Then we have learned about our immunity system. इम्यूनिटी सिस्टम में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अपना लिम्फेटिक सिस्टम, WBC, यस, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम कहाँ कहाँ पर जरूरी है? इट हैज ए इम्पोर्टेंट रोल in allergy reaction, in autoimmune disease, or organ transplant, everything I will be teaching you in this particular lesson. फिर हमने साइंटिस्ट के नाम को, एडवर्ड जेनर। Then we have seen the distinguish between antigen and antibodies. Antigen are foreign and antibodies are produced in response to this antigen. Then we have seen the types, of which we have learned in detail about innate immunity. Tomorrow we will be learning the types of acquired immunity. So we have seen all the 4 barriers with the example. Physical में skin and mucus. Physiological में all the secretions, pH, temperature. We have seen about the conjunctiva.
With that, we have seen a complementary Cascade system working for elimination of pathogen. Then we have seen about the cellular barriers, in which we have learned about the phagocytic cells like neutrophils and the monocytes. Again, with that, we have learned a special type of cell called as a natural killer cells, which are working for virus, that is against viral infection. Then we have learned about the cellular barriers, same thing. Cytokinins, we have told you about the interferons, histamine and the prostaglandins. Then I've told you there is one more thing about the APPS, acute phase protein. These proteins will be produced when there is an infection. थोड़े टाइम के लिए प्रोटीन प्रोड्यूस होता है अपने प्लाज्मा में, अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनका काम क्या है, इंजरी से बचाना, जहां भी डैमेज है उसको रिपेयर करना और अपने रेजिस्टेंस को एनहांस करना. फिर मैंने आपको एक्वायर्ड इम्यूनिटी सिस्टम के स्पेसिफिक फीचर्स बताए, यूनिक फीचर्स बताए. So it is specificity, diversity, discrimination and memory. These are the 4 important points of the acquired immunity. Okay? So I think I will stop over here. Tomorrow we will be learning about the acquired immunity, but I hope you all